हालेलुया। आओ असी खुदा की मेहनत लिए इस गीत के नाल अज की बात को शुरू करिए। हालेलुया। सारे जन मिलके ते पूरे दिल तो गावांगे। कि तुसी रेडी हो? हालेलुया। इकरार करते कि तुसी रेडी हो? यस। हालेलुया। पावे होए ना प्यार किसे मैनू नहीं करना जिना प्यार यसु मैनू ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। पावे मां होवे मेरी पावे बाप होवे मेरा होए ना प्यार किसे ओ मैनू नहीं करना जिना प्यार यसु मैनू कीता जिन्ना प्यार यसु मैनू कीता है इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यसु मैनू
परमेश्वर जिन्हें अपने पुत्र ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ कि कौन एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कितना प्यार साडे नाल कीता हालेलुया ये अपने दिलों च रखिए अपने उठते बैठते सोते अपने ध्यान में रखिए कि उन्हें साडे लिए की कीता है ये सारी जेड़ी जो बाइबल में लिखा है 2023 साल पहला हो चुका है पर ਅਸੀਂ ਇਸ हर साल ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ हालेलुया इसे करके हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज पान सकते हैं और यरूशलेम ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ कि तुसी रेडी हो हालेलुया 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 आओ ਅਸੀਂ एक और गीत ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ यहोवा आप संभाली मेरे कदमां नूं तेरा तेरे अगे दिल रखना हालेलुया थैंक यू जीसस पिता हो तेरे अगे ਸਾਡਾ ਮਸਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ और अपनी अग ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲੇਲੁਇਆ सोचण वाले ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ यहोवा यहोवा आप संभाले तू मेरे कदमां नूं ऊंची आवाज में गाएंगे
Bye.
हालेलुया। ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਫਾਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ, ਮੇਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ तेरे सिवा कोई नहीं। सब जन गाइए हालेलुया। सबको को जो भर सके हो तेरे सिवा कोई नहीं। सबको को जो भर सके अपने परों में कुछ बाहों तसल्ली तेरी बातों तेरे ही छिपे हाथों तसल्ली तेरी बातों तेरे ही छिपे हाथों मैं तेरी राह चलता रहूं मैं तेरी राह पर चलता रहूं कफारा मेरा सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राह चलता रहूं मैं तेरी राह पर चलता हालेलुया। ਉਹਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਿਤਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਆਵੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਏ ਸਭ ਜਨ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਹੈ। पवित्र वचन दे विचों देखिए कि परमेश्वर किद्दां अपने यरूशलेम वल जांदे ने और एंटर करदे ने तां लोग किद्दां उहदा स्वागत करदे हैं। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ देखिए मती ਉਹਦਾ 21 बार मैथ्यू चैप्टर 21 ਉਹਦੀ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 21 verse 1 to ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਔਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ
ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸ਼ਨਾ ਹੋਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े जानते सुने जानते खास बरकत होगी। हालेलुया आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर करते हैं तो लोग किदा उन्होंने एक नबी जिहड़े सारे ज्यूश अते दूजियां ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਮਾਂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧੁੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ वालों चले अपने चेलियां दे नाल तां लोकां ने देखा कि ये यीशु मसीह वही है जिहड़े एडे वड्डे वड्डे काम करदा है। तो सारे लोग एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई ओदे ओदे ओदा स्वागत करने दे लई। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक गधे उत्ते बैठ के यरूशलेम जा रहा है क्योंकि एक जानवर ते बैठने के लिए एक सवारी की लोड़ होंदी जिदा घोड़ियां दे उत्ते आपां एक चीज इस्तेमाल करते जिहदे उत्ते घोड़सवार बैठदा है। उसी तरह ओदे चेलियां ने गधे उत्ते अपने कपड़े विछाए तां जो एक सम्मान दे लई तां जो बैठण च सौखा होवे। पर जदों यरूशलेम वल जा रहा सी तां लोकां ने एक वर्ड क्या है बाइबल च लिखिया होसना। हालेलुया। होसना दा हीब्रू च मतलब आ कि हेल्प एंड सेव। उन्होंने ओदी बड़ाई तक की थी बिकॉज उन्होंने नबी समझते थे कि ये परमेश्वर का सब तो बड़ा नबी है जिहड़ा साडे विचकार हुण आया आ ते ये सारियां करामातां कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने होसना कहा तो उन्हों का मतलब ये सी कि जिहड़ा पातशाह आउण वाला आ जिहड़ा तू अपने आप को कहता है कि तू पातशाह है तू राजा है परमेश्वर ने तेनू घल्लिया है तो तू अपना राज स्थापित करने लई यरूशलेम विच जा रहा है तो सानू बचावी किहनां तो बचावी जिहड़ी उत्थे दी उस टाइम दे उत्ते गवर्नमेंट सी सरकार सी क्योंकि जिहड़े ज्यूश लोग सी वो बहुत चिर पहला गुलामी करते हुए इन्हां चीज़ां दे विचों निकलदे सी। तो उन्होंने अपने उस पुराने नियम दे विच ये लिखा हुआ है कि एक बादशाह आऊगा ते जिहड़ा तुहानू गुलामी दे विचों कड्डूगा और वो बादशाह दाऊद दे घराणे दे विचों होऊगा ते ओदी बादशाही कदी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। सो वो उन्हां दे मनां दे विच उन्हां दे दिमागां दे विच चीज़ सी कि ये ओही बादशाह है ये ओही राजा है जिहड़ा साडे विचकार हुण आया है जेड़े उस तो पहला नबी जिन्नियां ने जिक्र कीता वो इहदे बारे ही कीता है। हालेलुया। उन्हां नूं विश्वास हो गया ते वो इसे करके होसना च लाउण लगे कि हेल्प एंड सेव। जदों असीं इहदी डेफिनेशन पढ़दे हां अपने ऑनलाइन दे उत्ते चाहे किसी भी डिक्शनरी दे विच तां ओदे विच लिखिया होया है कि इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ क्राई। जदों बहुत ज़्यादा किसी नूं जदों दर्द हुंदा तो किद्दां चिल्ला के किसी नूं कहंदा कि सानू बचा मैनू मेरे वाल ध्यान कर मैनू देख एक उस तरह का एक एक्सप्रेशन सीगा जिहड़ा वो कहंदे सी कि दाऊद दे पुत्र यीशु नासरी होसना मतलब हेल्प एंड सेव अस
ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਇਨ ਮੀ। ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਮਤਲਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ 16 18 20 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਗਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੀਤ ਗਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਚਲੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਗਾਠਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
Thank you, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इब्राहिम, इसाक, याकूब दे खुदावन खुदा साडे पिता साडे मालिक साडे सिरजनहार स्वामी तेरा धन्यवाद करदे प्रभु जी। दिल दी गहराइयों तो तेरा धन्यवाद करदे प्रभु जी। यीशु साडा रोम रोम साडा अंग अंग तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी। जो जूदा दी धरती ते जूदे संभाल के रखया प्रभु यीशु और अपने घर विच आन दा फजल बख्शा तेरा धन्यवाद पिता। सचमुच तेरी मर्जी तो बगैर पिता परमेश्वर असी इस जगह ते नहीं आ सकते पिता। तुसी लेके आंदे ते असी आंदे आ तेरा धन्यवाद करदे तेरी भलाइयां लई तेरी रहमत बरकत तेरी बड़ी दया बड़ी कृपा वास्ते बड़े कमां वास्ते तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे बड़े प्यार लई तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। साडे नाल कीता तेरा धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। और हालेलुया प्रभु यीशु आज इस बंदी दे उत्ते तेरा बड़ा फल बड़ी कृपा हो जावे पिता परमेश्वर। जिन्हें लोग जिन्हें पैण भाई तेरे चरणा तेरे घर विच आए हन सब ते दया करना फजल करना हालेलुया। सब दे गमियां उदासियां नु खत्म करना पिता परमेश्वर। सब दे रस्तियां नु खोल दियो पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और सब नु अपनी महिमा वडेई करन दा फजल बख्श दियो और खास करके अपने स्वर्गीय राज भी तैयार करो तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। जो गीत भाई गाए गए तन स्वर्ग विच कबूल और जो दुआवां प्रार्थना कीती जान सुन के जवाब देना तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। जो आज दा वचन दस्या जावे प्रभु यीशु वचन खोलने तो पिता परमेश्वर साडे दिलां साडे कन्नां खोल देना पिता परमेश्वर ताकि तेरा वचन सुनिए अपने दिल विच रखिए तेरे खिलाफ गुनाह ना करिए खुदा बाप। और पिता परमेश्वर वचन साडे जिंदगी जो 100 गुना फल को लेके आए पिता परमेश्वर। और फल साडी जिंदगी च बढ़िया रहे तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया। जिस तेरे दास ने ऐसा वचन लेके आना पिता परमेश्वर ओनु तेरे हाथां विच सौंप दे तेरे लहू च कवर कर दे तेरे लहू च फील कर देने खुदा बाप जी। तू ब्लेस कर हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर जादू इत्ते आके इस पुलपट तो बोले पिता परमेश्वर ओ ना बोले ताडी आत्मा ओदे विच दी होके साडे सामने गलबात करे पिता परमेश्वर। और वचन सुनदे हर एक दे हृदय शिव जान और पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ वचन पिता परमेश्वर हालेलुया उस जमीना दे उत्ते हालेलुया बीजा जावे और 100 गुना फल को लेके आए तेरा धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। सब ते दया करना पिता परमेश्वर। जे कोई अपनी अरदासा बेनतियां नु लेके आए पिता परमेश्वर हालेलुया उन्हां दी अरदासा बेनतियां सुन के उन्हां दा जवाब देना तेरा धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर असी तेरे जिस तरह पिता परमेश्वर आज दिन उन्होंने यरूशलेम से तेरा स्वागत किया पिता परमेश्वर असी अपनी जिंदगी में तेरा स्वागत कर दे हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर कि अपने दिलां नु खोल दे तेरे वास्ते हालेलुया। तू साडे अंदर आ हालेलुया हालेलुया और साडे नाल गलबात कर तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु सिरजनहार स्वामी तेरा धन्यवाद हालेलुया। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सब ते दया करो फजल करो तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे नाम से तेरे लोग बचाए जाए छुड़ाए जाए आजाद हो जाए चंगे हो जाए हालेलुया पिता परमेश्वर तेरे नाम की बड़ी गवाहियां तैयार हो पिता परमेश्वर। सब ते दया कर फजल कर कृपा कर कृपालु दयालु सच्चे जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जो कुछ मांग लिया दे देना जो कुछ मांगना पड़ गया अपने पितर खजाने जो बख्श देना तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। अगर सारा समा तेरे सामर्थी हत्थां विच सौंप दे परमेश्वर। सब कुछ मांगदे ताडे प्यारे पुत्र अपने खुदा बाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे कुदरती सामर्थी जीवते जलाली मौत और स्थान पे फतेह का सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई। आओ सारे जने अपना तालियां दे नाल खुदावंद दे दास दा स्वागत करिए हालेलुया। एक बार फिर खुदा का शुक्र करते कि खुदा ने ये जिंदगी दी और उसकी हजूरी में आए। फिर आप सबको हैप्पी पाम संडे। खुदा का बहुत शुक्र है। तो भाई ने काफ़ी आज बयान कर दिया फिर आगे और मजीद सीखेंगे इसके बारे में। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ इसको खोले लूका रसूल की अंजील मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 29 आयत से मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है बड़े गौर से सुनते जाएं और साथ साथ उसको समझें। लूका रसूल की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें यूं लिखा है जब
वह यानी यीशु मसीह जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा। सो ये जो सफर था, यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने जा रहे हैं। तो ये सफर जो शुरू हुआ था यरीहो से शुरू हुआ था। यरीहो से वो चल रहे हैं तो रास्ते में बड़े मौजदे हुए। ये शहर है जैतून नाम पहाड़ का जिक्र है। ये बैतफगे जो इस्राइल का एक शहर है, इब्रानी नाम है, यानी इसका मतलब है खजूरों का घर। और उसके आगे लिखा है और वह बैतनिय्याह के पास पहुंचा। बैतनिय्याह आप सब जानते हैं बहुत बड़ा मौजदा हुआ था। कोई बता सकता है जी बैतनिय्याह में क्या हुआ था? गौर से सुनिए, बोलिए, बोला करेगी। आप जब आप बोलेंगे पता लगता है कि आप कितना कलाम पढ़ते हैं। एक ऐसा मौजदा हुआ था जिसने हिला के रख दिया बैतनिय्याह में, वो लाजर का जिंदा होना था। यीशु मसीह ने क्या किया था? लाजर को कहां जिंदा किया था? बैतनिय्याह में। तो गौर से सुना करें, समझा करें। सो ये जो सफर था यरीहो से शुरू हुआ। सो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे यानी खजूरों का घर और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की क्या करने लगे? तमजीद करने लगे। खुदा के जो बड़े काम जो भीड़ ने देखे थे उसकी क्या करने लगे? तमजीद करने लगे, स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यह कलाम बोलने लग गए। जो भीड़ की यह कलाम बोल रही है। जबूर 118 उसकी 26 आयत खुद ब खुद उनके मुंह से निकलने लग गए। ये जो मैंने पढ़ा है, जो भीड़ बोल रही है, जबूर 118 और उसकी 26वीं आयत में जो लिखा गया है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे। अब भीड़ में एक ग्रुप था फरीसियों का जो इन हो गया था, तो वो क्या कहने लगा? तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट।
क्या कर? अपने चेलों को डांट। अब यीशु मसीह का जवाब सुनिए। भीड़ कहती है, फरीसी कहते हैं अपने शागिर्दों को डांट, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, ये है जीसस। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर इंसान चुप हो जाएंगे तो पत्थर खुदा की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। अगर गदी बोल सकती है तो पत्थर भी खुदा की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। बिलाम की गदी का पता है, गदी बोल उठी तो खुदा कहता पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। कभी आपने देखा है चट्टानों को खुदा की महिमा करते, कभी पत्थर को देखा, ये भी करेंगे अगर इंसान चुप हो गए। हालेलुया। ये है जीसस। खुदा कहता है अगर पत्थर चिल्ला उठेंगे अगर ये चुप हो गए। और आगे सुनिए, अचानक सीन बदल जाता है। सीन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? 41वीं आयत, जब वह निकट आया, सीन बदलने लगा है। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर क्या हुआ? रोया। एकदम सीन चेंज हो गया। जब वह निकट आया, यरूशलेम की तरफ देखकर क्या हुआ? रोया। रोया का यूनानी में जो मतलब है, उसका मतलब है चिल्लाहट, विलाप करना, कराहना, सिसकियां लेना। यह है यूनानी का मतलब। यीशु मसीह जब निकट आया तो क्या हुआ? नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता। गौर से सुनिए, यीशु मसीह अब फरमा रहे हैं और कहा क्या ही भला होता, यानी काश, काश कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता। काश तू इस दिन में किसकी बातें जानता? सलामती की बातें जानता, कुशल की बातें जानता। पर अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। अब वो तेरी आंखों से क्या हो गई है? छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि दैट इज द पॉइंट। ये गौर से सुनिएगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। किस वक्त को? जब तुझ पर निगाह की गई थी, तूने उस अवसर को ना पहचाना। दैट इज द पॉइंट। ये जो मैंने हवाला पढ़ा है, यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश करने जा रहे हैं पाम संडे। मुकद्दस लूका रसूल ने, मत्ती में भी इसका जिक्र है, मरकुस में भी इसका जिक्र है, यूहन्ना में भी इसका जिक्र है, पर लूका रसूल ने इसकी ज्यादा मालूमात दी है। आइए हम मत्ती रसूल के भी देखते हैं क्या लिखा है। मत्ती रसूल भाई ने पहले ही पढ़ दिया, उसमें भी देखेंगे क्या लिखा है। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत से। मत्ती रसूल उसका 21वां बाब और उसकी 4 आयत। यह इसलिए हुआ कि जो वचन नबियों के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। यानी जकरिया नबी 9 बाब और 9 आयत कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास क्या है? आता है, वह नम्र है और
गधे पर बैठा है। वो क्या है? नम्र है और गधे पर बैठा है। जकरिया नबी 9:9 आयत। अब ये जो लोग थे क्या समझते थे कि जब कभी बादशाह जब घोड़े पर बैठता था तो उसका क्या मतलब था? अगर कोई बादशाह घोड़े पर बैठता था तो इसका मतलब था कि वो जंग पे जा रहा है। तो ये आयत हमें क्या मैसेज देती है? फिर गौर से सुनिए। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह क्या है? नम्र है और गधे पर बैठा है। किस पर बैठा है? गधे पर बैठा है। ये आयत हमें क्या मैसेज देती है? जब कोई बादशाह घोड़े पर बैठता था तो वो जंग का ऐलान करता था, पर यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठा था क्योंकि वो जंग की नहीं, वो सलामती की बातें करता है। हालेलुया। वो सुलह चाहता है, वो अमन चाहता है, वो पीस चाहता है, वो जंग नहीं चाहता। हालेलुया। दुनिया को जंग वाला बादशाह नहीं, दुनिया को शांति वाला बादशाह चाहिए। हालेलुया। अमन शांति वाला चाहिए, अमन वाला बादशाह चाहिए। इसलिए ये आयत मैसेज देती कि यीशु मसीह ने मैसेज दिया, मैं जंग नहीं, मैं सुनना चाहता हूं। वो गद्दी पर बैठा। आगे सुनिए उसकी 9 आयत। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशना। होशना भाई ने मतलब बताया, इब्रानी और अरामी का लफ्ज है, यानी हमें सेव कर, हमें बचा, हमारी मदद कर। क्या कर? हमारी मदद कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। आकाश में होशना। ये मत्ती रसूल में और मरकुस रसूल की अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत में भी आज हम सारी जो अंजील लिखी है देखेंगे, पर मुकद्दस लूका ने इसको ज्यादा ऑब्जर्व किया है। मार्क 11, 9 और 10, मरकुस 11 बाब और उसकी 9 और 10 आयत। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और उसकी 10वीं आयत, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशना। और यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, यूहन्ना 12:12, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो परम में आए थे, यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। अब हम वापस लूका रसूल की अंजील और उसकी 19वां बाब जो मैंने पढ़ा है उस पर वापस आएंगे और उस पर गौर करेंगे। ये जो भीड़ थी यीशु मसीह के साथ यरीहो से चल रही थी, जिन्होंने बड़े मोजज़े देखे थे, होशना के नारे लगा रहे थे, जो कह रहे थे धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, शांति, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। वो नारे लगा रही थी, खुदा की तमजीद कर रही थी, खुदा की बढ़ियाई कर रही थी, उसकी स्तुति कर रही थी। जब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे कि अपने चेलों को क्या कर, चुप करा, अपने शागिर्दों को क्या कर, चुप करा। यीशु ने कहा अगर ये चुप हो गए तो क्या है, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर खुदा की क्या कहेंगे, महिमा करेंगे। अगर गधी बोल सकती है तो पत्थर भी खुदा की महिमा कर सकते हैं। और 41वीं आयत, जब वह निकट आया
तो नगर को देखकर उस पर रोया। रोया मैंने आपको बताया, यूनानी में इसका मतलब है कराहना, चिल्लाहट, सिसकियां लेना, रूहों की नजात के लिए तड़प रखना, रूहों की नजात के लिए प्यास रखना, दुखी हो जाना हृदय से, किसी के दुख में शामिल हो जाना, किसी के दुख को अपना दुख समझना, यह है रोना यूनानी में। यीशु मसीह जब निकट आया तो नगर को देखकर, यरूशलेम में जब प्रवेश करने जा रहा था तो देखकर नगर को रोया। क्यों रोया? कहता है, और उसने कहा क्या ही भला होता, काश कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, सलामती की बातें जानता, सुलह की बातें जानता। ये लोग भीड़ उसके साथ चल रही थी, पर वो यीशु को समझ नहीं रहे थे। वो समझते थे कि कोई बादशाह आएगा जो क्या करेगा, हमें रोमी साम्राज्य से क्या करेगा, छुटकारा देगा। गुलामी में थे, हमें आजाद करेगा। वो मसीहा आएगा, हमें आजाद करेगा। वो यीशु के आने के मकसद को समझ नहीं सके। उन्होंने यीशु को रद्द कर दिया, इसीलिए वो नारे लगा रहे थे, पर भीड़ में से कहते थे इसे चुप कराओ। आज भी गिरजे में बहुत सारे लोग नारे मारते हैं, पर उनको यीशु के आने का मकसद नहीं समझ आता। उस भेद को, उस मिस्ट्री को, उस रोशनी को वो समझ नहीं पाते। वो नारे लगा रहे, पर हकीकत में यीशु को नहीं समझते। उस जिंदगी को, नए पैदाइश का तजर्बा नहीं उनको, यीशु मसीह के आने का मकसद नहीं समझते, नारे लगा रहे हैं। यीशु कहता, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर क्या चिल्ला उठेंगे। क्या काश कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता। क्या है कुशल की बातें? जिंदगी बख्श कलाम। काश ये हम कह सके, मैं इससे सबसे ज्यादा क्या करता हूं, मोहब्बत करता हूं। ये है सुलह की बातें, ये है कुशल की बातें। खुदा कहता है, काश तू कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से क्या हो गई, दूर हो गई। अब वो तेरी आंखों से छिप गई है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 9 आयत में यह लिखा है, हिब्रू 10:10, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। देखिए खुदा का काम क्या कहता है, 10 बाब 29 आयत, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोदा। किसने रोदा? वो दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने खुदा के बेटे को पांव से रोदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, नापाक जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। कितने दंड के योग्य वो ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को क्या किया है, रद्द किया है, निग्लेक्ट किया है। और फिलिपियां और उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में जैसे यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, फिलिपियां उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में आपको एक और मिलेगा। पौलुस रसूल क्या बयान करता है, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं। बहुतेरे कैसी चाल चलते हैं? जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी क्या करता हूं, रो रो कर करता हूं। पौलुस रसूल कहता है फिलिपियों को, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं।
अपनी चाल चलन से। मसीह की क्रूस के वैरी हैं, उनका अंत क्या है? विनाश है। उनका अंत क्या है? विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। क्या है उनका? उनका ईश्वर क्या है? पेट है, यानी कि लालच, हवस। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर क्या करते हैं? गरूर करते हैं, घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, दुनिया की चीजों पर मन लगाए रहते हैं। उनका अंत जो है विनाश है। बाइबल कहता है, खुदा कहता है, काश तू उस दिन को कुशल की बातों को जानता। वो अब तेरी दृष्टि से क्या की गई है? छुप गई है। काश तू जानता। सामरी औरत को यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब ये सामरी औरत यीशु के पास आई, यीशु ने क्या कहा? मुझे पानी पिला। तू यहूदी होकर सामरी से मांगता। यीशु क्या कहता? अगर तू खुदा के उस वरदान को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे मांगता है, तो तू उससे मांगती, वो तुझे जिंदगी का पानी देता, तेरे अंदर से जीवन का जल का सोता बहना है। और दूसरे क्या होते? काश सामरी औरत यीशु को जानती और जाकर यीशु मसीह क्या करने लगी? मनाती करने लगी, मसीहा जो आने वाला था वो ये है। हालेलुया। तो खुदा कहता है कि काश तू क्या करता? कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। और उसकी 43 आयत 43वीं आयत, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। क्या दिन आएंगे? वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। यरूशलेम के बारे में यीशु मसीह बयान कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। यह नबूवत कर रहा था। तेरे बैरी तुझको दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने खुदा को रद्द किया। हालेलुया। क्योंकि तूने उस अवसर को, हालेलुया, मैंने पहले बोला था, दैट इज द पॉइंट। ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर निगाह की गई थी ना पहचाना। उस अवसर को जब तुझे मौका मिला, बताया गया, तो तूने उस अवसर को ना पहचाना। ये नबूवत कर दी है। आप सभी जानते हैं कि रोमी साम्राज्य ने यरूशलेम को क्या किया? नहस कर दिया। 70 एडी में यीशु मसीह के चले जाने के 40 बाद ये नबूवत पूरी हुई। यीशु मसीह ने क्या किया था? नाश कर देंगे। और 70 एडी में 40 साल बाद ये नबूवत पूरी हुई। यरूशलेम नाश कर दिया गया। सैकड़ों हजारों यहूदी मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने यीशु को रद्द कर दिया। ये आज मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल है। अगर हम यीशु को रद्द करते हैं तो उनका अंत क्या है? विनाश है। ये आज खुदा हम पर निगाह करता है। उस अवसर को जानिए, उस अवसर को समझिए कि जब खुदा का कलाम हम पर नाजिल होता है, हम पर आता है, हम पर पहुंचता है, हम सुनते हैं, पर हम उसको सुनकर क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, उसको मानते नहीं, हम अपनी मर्जी चलते हैं। खुदा अपनी महिमा करवाना जानता है। खुदा कहता है अगर तुम चुप कर गए तो ये पत्थर जिला उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो अपनी महिमा पत्थरों से ले सकता है। वो यरूशलेम में जा रहा है। इसका मतलब है ये क्या मैसेज देता है कि पत्थर जिला उठेंगे, कि आसमान, सारी कायनात मिलकर
रही है, क्योंकि क्रिएटर जा रहा है, दुनिया का बनाने वाला, दुनिया का रचनेहार वो जा रहा है। उस सारी आसमान जमीन हर एक चीज मिलकर उसकी क्या कर रही है, परस्तिश कर रही, क्योंकि वो यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना 11 बाब में बैतनिया में जब वो था, तो जब वो लाजर को जिंदा करने के लिए जा रहा था, तो वो शिगिर्दों से कहता लाजर सो गया, तो मैं जगाने जा रहा हूं। तो शिगिर्द कहते वो सो गया, तो फिर जाग उठेगा, वो जाग उठेगा। यीशु मसीह ने फिर साफ कहा वो मर गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। शिगिर्दों ने उसे कहा तू वहां जा रहा है, वहां तो तुझे पकड़ लेंगे, वहां तो तुझे मारा जाएगा। यीशु मसीह फिर गए, कहते एक शिगिर्द ने ये भी कह दिया अब ये तो मरने को जा रहा, अब हम भी चलते इसके साथ मरने, जाना तो साथ ही, अब हम भी इसके साथ जा रहे हैं मरने को। उस मौजूदे ने हिला के रख दिया। खुदा कहता अगर इंसान चुप कर जाएगा तो पत्थर मेरी महिमा करेंगे। यरूशलेम में प्रवेश करना, इसका मतलब यह है कि सारी कायनात मिलकर जो सृष्टि का करता है, बनाने वाला है, रचने वाला है, उसकी तमजीद और महिमा कर रही है। हालेलुया। आज उस अवसर को समझे भाइयों बहनों, उस अवसर को पहचाने। खुदा कहता है जब तुझ पर निगाह की गई, तूने उस अवसर को ना पहचाना, और वो अब तेरी आंखों से क्या हो गई है, छिप गई है। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। जब खुदा हमसे बातें करता है तो उस पर गौर करें, उस पर चलें, उस पर कहें खुदा हमें इस पर चलने की ताकत दे। यरूशलेम में प्रवेश किया से नबूवत की वो 40 साल के बाद पूरी हो गई। खुदा का कलाम सच्चा है, और एक एक बात वो जो बोली जाती है वो पूरी होती है। हालेलुया। अगर यरूशलेम के लोग ना सुने, क्योंकि उन्होंने रद्द किया मसीह को। वो एक ऐसे बादशाह की तलाश में थे, वो सियासी बादशाह की तलाश में थे जो उन्हें रोम से क्या करेगा, आजाद करेगा, और राजनीतिक तौर पर सारे राष्ट्रों पर क्या करेगा, हुकूमत करेगा। पर उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, उसके आने के मकसद को नहीं समझा, क्योंकि दुनिया को जंगजू बादशाह नहीं चाहिए, दुनिया को सलामती का बादशाह चाहिए, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज गॉड। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। उसकी स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी महिमा करें। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। अपने होठों को खोल के उसका शुक्र करें। हालेलुया। उसकी तमजीद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। कोई जन अपनी आंखें ना खोले, खुदा की हुजूरी यहां है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज गॉड। उसकी स्तुति करें। हालेलुया। उसके नाम की तमजीद करें। हालेलुया। उसकी महिमा करें। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। 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 भाई जी आप ढोलकी पे आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखें बंद रखें। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। ओ रब दी हुन बड़ाई सब आसमाना विच आई तारी करो बुलंदी करो Hallelujah.
आगे मतलब गौर से सुने। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम की हालात को देखकर रोया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यीशु को रद्द कर दिया। आज अपने मन में इकरार करें कि यीशु मसीह तू मेरी खातिर इस दुनिया में आया, तूने मेरे खातिर सलीब पर अपनी जान दी, अपना बेशकीमती खून मेरे गुनाहों, मेरे पापों के लिए बहा दिया। तेरे कोड़े खाने से मैंने नजात पाली, तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई। खुदा मैं तेरी उस मोहब्बत को आज मैं जान गया। खुदा प्रभु मुझ पर उस पर चलने की ताकत दे, तेरे उस आने की, तेरे उस कुर्बानी की अहमियत को, तेरे उस मकसद को जैसे वो यरूशलेम के लोग, वो यहूदी लोग नहीं समझ सके, मैं समझ जाऊं। खुदा यीशु उनकी हालात को देखकर रोया। यीशु का रोने का यही कारण था क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए दुनिया में आया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए, जिंदगी पाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। उसके आंसू जारी हो गए, वो तड़प गया, सिसकियां लेकर रोने लगा, चिल्लाहट से। रूहों के जीतने की उसके अंदर तड़प थी, रूहों को जीतने की उसके अंदर प्यास थी। वो उसको रद्द कर गए, उसके आने के मकसद को ना समझ सके। आज यीशु को रोना इसलिए आता है जब उसके लोग उसकी इबादत करते हैं पर उसके आने के मकसद को नहीं समझते। हालेलुया। आज समझिए कि यीशु तू क्यों इस दुनिया में आया। तू मेरे लिए अपनी जान दी, तूने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि वो मैं हमेशा की जिंदगी पा सकूं, उस राज में प्रवेश कर सकूं, उस बादशाही में मैं जा सकूं जिससे आदम की वजह से हम निकाले गए थे। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। खुदा वो हम उस भीड़ की मालिक ना बने, वो जो नारे मार रही थी पर उनके दिल तुझसे दूर थे, वो तेरे उस मकसद को ना समझ सके। खुदा हम उस भीड़ में शामिल ना हो सके, हम दिल से तेरे उस आने के मकसद को जान सके, तेरी उस मोहब्बत को सीख सके, तेरे उस प्यार को जान जाए। हालेलुया। आंखें बंद रखें अजीजों, खुदा की हुजूरी पर मजबूरी इस जगह पे है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. और इस गीत के नाम अपना खुदा का धन्यवाद करिए। हालेलुया। इस गीत के द्वारा हम ऐसे अपने नजराने परमेश्वर को चढ़ाएंगे। आशीर्वाद दे लवांगे, तेनू रुकना पवेगा, पाक वचना दे अगे तेनू झुकना पवेगा, झुकना पवेगा। जदों पाक रूह दी अग्नि वरांगे, तेनू बचना फता तेरे देश में पावांगे, तेनू बचना तेरा साडे ते शैताना कोई चले ना, तेरा साडे ते शैताना कोई चले ना। हस्ती यसु के सिवा सानू जाई ना कोई, हस्ती यसु के सिवा सानू जाई ना कोई। हस्ती कोई हथियार ना मारे,
रिक्वेस्ट करूंगा अंकल वॉशिंगटन, आप आगे आए और आज के हदिये के लिए और ऑफरिंग के लिए दुआ करें। Our Heavenly Father, our Lord, our Master, our Christ, our hope, our aspirations, our bridge, our structures, our instrument, our truth. Now, based upon all those qualities, your glory, you worship you and call you our Lord Jesus Christ, the Savior of the world. It's great coherence. The Lord Jesus Christ came in this world and saved the people who believes die on him. Therefore, we promulgate today that Lord Jesus Christ is the King of the King who saved our life while the serious soldiers were around him and crucified him, and the Lord shed the blood on the cross and saved us who believes on him. Lord, we thank you for this contribution that the children you brought in the house, we want a special blessing for them, one special blessing for their work, bless them so they can bring the reasonable offer in the Lord Jesus' house, so the kingdom of the Lord and the operations of the Lord can run smoothly, and we can save our lives through this promises. Lord, we ask and we lead from here, give us the protection, save us. Also, we thank you for this wonderful message, sweet message, effective message, which was presented by the Brother Raju. It has affected in our life and changed our life. We also want a blessing for him. And we also want a blessing for the pastor and the Mrs. Pastor. And also praise for the pastor that gave him complete redemptions from the sickness, and so that the child can give your messages on the stage very boldly with your name. Lord, pay attention on all we ask you and listen our praise, and all we ask in Jesus' name. Thank you. और रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी ਨੂੰ कि वो ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਖੁਸ਼ੀ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। आओ परमेश्वर के तालियां दे नाल उन्हां दा स्वागत करिए। आइए अपा खुदा का शुक्र करिए कैसे खुदा का बच्चा है कलाम सुन सके और ये बात कर सके सब करिए खुदा मेहरबानी आप अपना
हमारे साढ़े बाप दूसरा आसमान पे है, तेरा नाम पाक मने जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी होवे। कड़े रोज रुपया सब से कड़े कुछ का माफ कर, जिस तरह से हमने उस पर माफ करते हैं। अपने मैं बिना पा तो करे तो बचा, राज कुदरत और जलाल बेशक है। आमीन। अब खुदा ने सिलसिला पढ़े दावा भी मरबो बात में दिलफात का शहादत तमाम खुदा ने मुकद्दर बंदा दुनिया पर देखती से अल्लाह उनको हमेशा तक दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया खुदा इससे बात में किस तरह कुरान पढ़ते हैं खुदा का बहुत वसीम खुदा शुक्र करने मेहरबानी करके बैठिए।